Hello friends, welcome back to another most awaited video with the most awaited program of the year GSOC 2025 known as the Google Summer of Code. Yes, इस वीडियो की बहुत डिमांड रही थी, प्लीज इस पे वीडियो बनाई जाए and December is the best time to create a video about it as December is the best time to start preparing for the GSOC 2025 as it needs early preparation. GSOC के लिए early preparation लगती है and yes, it's worth it. Okay, so I will be covering all the parts in it, starting from the what is GSOC, then timeline, how to prepare for it and the treasures. Therefore, there would be treasures and tips and tricks for you. But believe me, how to prepare would be a key segment about this video. And if you go to this video, then you would have a solid रोड मैप इन योर माइंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट. आपके माइंड में सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको एटलीस्ट प्रिपेयर कैसे करना है. उसके बाद कमांड आपके हाथ में होगा, लेकिन मैं आपको एक पुश दूंगा, एक स्टार्ट दूंगा, एक क्लियरिटी दूंगा माइंड में कि स्टार्ट कैसे करना है. ओके, सो आई होप यू वुड बी गेट सेटिस्फाइड आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो एंड यू वुड गेट द पीपीटी इन माय व्हाट्सएप ग्रुप. आपको पूरी पीपीटी मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप अपने इसी पे एडिट कर सकते हैं, अपने की पॉइंट्स यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, इसके बारे में सीख सकते हैं. एंड आई वुड सजेस्ट यू कि पहले आप वीडियो को पॉज करें, ये पीपीटी अपने साथ डाउनलोड कर लें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन आपको साथ ही साथ आप उसमें एडिट करते जाएंगे क्या क्या इसमें चेंजेस करने हैं. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट इज GSOC एक्चुअली. ओके, सो गूगल समर ऑफ कोड एक्चुअल में है क्या. सो इट्स ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन प्रोग्राम वेयर Google invites a company from worldwide to come with it and invite students to contribute upon their open source program. ये open source program क्या होते हैं, open source softwares क्या होते हैं. open source software ऐसे होते हैं जिनके कोड जो है पब्लिक होते हैं, उसमें जाके कोई भी कंट्रीब्यूशन कर सकता है, कोई भी प्रोग्राम में चेंजेस कर सकता है. So that's we known as the open source programs or the softwares. Okay, so such companies are come with in collaboration with the Google and invite the students to contribute in their projects. Okay, so the best part about the GSOC is that there are no eligibility criteria. कोई eligibility criteria नहीं है. It doesn't matter from which branch you belong to, whether you have a commerce side or the art side or the bio side or the math side, whatever the engineering side. If you have the interest in the programming, if you love to code, then GSOC is going to love you as well in the return because GSOC is all about programming. It doesn't matter अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल भी है तब भी आपके लिए GSOC बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. ओके, सो अगर हिस्ट्री की बात करें then it's continuously contributing from the past 19 years से लगातार हो रहा है and duration it's about 12 week. It's officially run for the 12 week starting from the March and it would end in the May. तो मार्च से एंड अराउंड 3 months के अराउंड ये चलता है. ये तो ऑफिशियल टाइमलाइन में, बट हमें इसके लिए प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट करनी होती है. उसके बारे में हम आगे स्लाइड्स में बात कर रहे होंगे. हाउ टू प्रिपेयर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. मैंने टाइम स्टैम्प भी दिया वीडियो में, अगर आप डायरेक्ट जंप करना चाहें तो जाके जंप भी कर सकते हैं. अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो उससे पहले आप स्टाइपेंड का सेक्शन देख सकते हैं मेरी वीडियो पे इस वक्त स्क्रीन पे. स्टाइपेंड इज एक्चुअली समथिंग हियर व्हिच सीक्स अटेंशन राइट नाउ बिकॉज फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट और द बेसिक प्रोजेक्ट monthly stipend is $700. For the medium project in the India, you would be getting the $1,500 of the stipend. For the large project, you would be getting the 3,000 stipend per month, and that's around 2.5 lakh, which definitely grabs the interest of everyone watching this video. But we don't have to only contribute or participate in this program just for the stipend. Stipend के लिए ही इसमें हमें participate नहीं करना है. The experience itself really matters. What are you going to learn from this program? You are going to collaborate with the big leaders, with big programmers, with the open source society. You would be going to learn a whole lot of things. So सिर्फ स्टाइपेंड के लिए हमें फोकस नहीं करना है और ये भी नहीं सोचना कि अरे ये तो बहुत बड़ा स्टाइपेंड है, शायद हमारे लिए नहीं है, ये प्रोग्राम हमें छोड़ देना चाहिए. नहीं, if you have the interest in the programming, please must participate in this program or must prepare for this program at least once in their life. Okay, आपको एक बार तो इसमें पार्टिसिपेट करना ही चाहिए. GSOC is something worth trying. Okay, so yes, bugs opportunities आपके सामने visible है, but something that is not visible is about the leadership, mentorship, what you will be getting from the companies itself. आपको उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, उनके साथ मेंटर्स के साथ सेशन लेने का मौका मिलेगा, आपको ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन सीखने को मिलेगा. एंड अगर आप एक बार GSOC से फैमिलियर हो जाते हैं तो बिलीव मी, अगर आप ठीक से ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं तो आप लगभग काफ़ी सारी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने के लिए रेडी हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हैं. इट्स द ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन समथिंग टू बी वर्थ अबाउट. सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन द डेप्थ एज वेल एज द फर्दर अपकमिंग टाइम. सो टॉकिंग अबाउट द टाइमलाइन. सो बेसिक टाइमलाइन इज अनाउंसमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इज अबाउट टू बी हेल्ड इन द फरवरी एंड. जब ऑफिशियल पेज पे कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आने वाली हैं उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन फरवरी एंड में जाके अनाउंस की जाती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनके अंडर आपको वर्क करने का मौका मिलेगा. आपको अपना टैक्स सेलेक्ट करना है कि यस ये कंपनी मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, मैं इसके लिए एम करना चाहता हूँ, तो उसके साथ आप उनके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो. यू गॉट द 1 month टू स्टडी द ऑर्गेनाइजेशन. आपको 1 मंथ का टाइम मिलता है उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सबको समझने का, आपको उनके बारे में और कुछ जानने का, क्या क्या इशूज़ है उनके कोड स्टैक में, क्या क्या कोड स्टैक यूज़ करते हैं, क्या डाटाबेस यूज़ करते हैं, कैसा कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी कंपनी प्रेफर करके 2-3 कंपनी आपको प्रेफर करनी है. उसके बाद टाइम आ जाता है प्रपोजल सबमिशन का. आपको प्रपोजल बनाना है, आपने कंपनी के बारे में स्टडी कर लिया, ऑलरेडी स्टडी अबाउट द कंपनी एंड यू आर रेडी टू क्रिएट द प्रपोजल. एंड प्रपोजल टाइमलाइन इज ऑफ द मार्च एंड टू द अप्रैल 1st. ये कितना टाइम आपको मिलता है प्रपोजल आपको सबमिट करने के लिए. बट डोंट वरी, आई विल बी गेटिंग यू सम एग्जांपल्स टू हाउ टू क्रिएट द प्रपोजल फॉर द सबमिशन एज वेल. मेरे पास पिछले ईयर के काफ़ी जो सिलेक्टेड प्रपोजल हैं, जो सिलेक्ट हो चुके हैं, वो मेरे पास हैं आपके लिए. वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप डायरेक्ट जाकर चेक कर सकते हैं. 3 प्रपोजल्स हैं, आपको उसका आइडिया मिल जाएगा एक्चुअल में हम कैसे प्रपोजल्स क्रिएट कर सकते हैं. देन कमिंग टू द रिजल्ट अनाउंसमेंट, वो हो जाता है मे के एंड में. ओके, मे के टाइम पीरियड में आपको रिजल्ट भी आ जाता है कि यस यू आर सिलेक्टेड. बट
टाइमलाइन में और भी बहुत कुछ है और बहुत कुछ हिडन है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें। लेकिन अगर आपको ऑफिशियल टाइमलाइन चेक करनी है तो आपको वो गूगल समर ऑफ कोड के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। यू कैन सी दिस, इट्स द लिंक, आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड इट्स द ऑफिशियल 2024 टाइमलाइन, 2024 की टाइमलाइन है, बट सिमिलरली 2025 में भी चीज़ें होने वाली हैं, थोड़ी चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं। सो मेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन बिगिन सबमिटिंग एप्लीकेशन टू गूगल, सो इट्स नॉट फॉर अस, देन फॉर अस द थिंग स्टार्टेड फ्रॉम द February 6 mentoring organization applied application deadline, and the February 6 को Google Program Administration reviews organization application, and the list of accepted mentoring organization published। यहाँ 21 से हमारे लिए काम स्टार्ट हो जाता है जब सारे ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश हो जाती हैं, और उसके बाद आप जाके चेक कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं, क्या क्या होने वाला है। तो आप टाइमलाइन अपने आप भी चेक कर सकते हैं। मोटी मोटी चीज़, ब्रॉडर एग्जांपल्स मैंने आपको सब कुछ समझाते हुए चल रहा हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, लेट मी प्रेजेंट इट। Coming to the next slide, it's going to be start prepare early. Yes, that's the crucial point. Okay, हमें start करना है, प्रिपरेशन करना अर्ली। फरवरी में ऑर्गेनाइजेशन आएंगी, एक महीने का टाइम पीरियड मिलेगा आपको टाइम प्रिपेयर करने के लिए, दैट्स नॉट सफिशिएंट। इट्स जी सर गूगल समर ऑफ कोड, यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयर अर्ली। दिसंबर इज द लास्ट थिंग। अगर आप दिसंबर में भी प्रिपेयर करना स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, सो बिलीव मी इट्स गोइंग टू बी हार्ड फॉर यू। ओके, सो दिसंबर में भी हार्ड होने वाला है, बट यस, दिसंबर ठीक टाइम है आपके लिए स्टार्ट करने के लिए। ओके, सो प्लीज स्टार्ट प्रिपेयर अर्ली। हाउ टू प्रिपेयर, स्टार्ट कर देंगे हम अभी से, लेकिन कैसे करना है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रॉम द बिगनिंग इटसेल्फ। अगर आपने अभी तक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी है या अच्छे से नहीं सीखी है, सो प्लीज मेक श्योर यू गेट अ प्रॉपर ग्रिप अपॉन अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपने अभी तक नहीं सीखी है कोई, देन आई विल सजेस्ट यू to start with the Python or JavaScript, but if you have any interest in any other language, you can also go with this, but the preferred one is Python, JavaScript, Java, C++ और the Ruby और PHP। ये लैंग्वेज जो है ज़्यादातर कॉमन है पूरे GSOC में, इसके अराउंड ही आपको सारे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं और सारी कंपनीज के टेक स्टैक्स देखने को, बेस कोड बेस देखने को मिलते हैं। सो यू कैन गो विद द Python, JavaScript, Java, C++ और the Ruby और PHP। ये these are the common language. Once you prepared or start learning a particular language and got a proper command on the fundamentals and the foundation, then you can jump for the next step. But if you are niche specific or coming from the background of the data science, machine learning specific, then don't worry, you also have the section or the scope in this program as well। यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आते हैं, कंपनीज आती हैं जो कि मशीन लर्निंग और डाटा साइंस स्पेसिफिक होती हैं, उसमें आपको आपका नीचे मिलेगा, उसमें आपको ऐसे प्रोजेक्ट मिलेंगे जिसमें आपका ये रोल जो है एक्सक्लूसिवली यूज हो रहा होगा। सो डोंट वरी, इफ यू आर नीश स्पेसिफिक देन यू वुड बी ऑल्सो इन्वाइटेड इन दिस प्रोग्राम एज वेल। देन कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोग्राम, इफ यू आर डन विद द लर्निंग लैंग्वेजेस एंड एज ऑल, देन प्लीज बिल्ड द प्रोजेक्ट्स। जब तक आप प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं करेंगे, सिर्फ थ्योरी कर लेंगे, अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कर लेंगे, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट्स, नॉट द ओनली geek for geek codes और एनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। ऐसे हैकाथॉन्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्रपोजल्स के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट सबमिशंस के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स पे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि हम एक वर्किंग प्रोजेक्ट पे, एक वर्किंग वेब एप्लीकेशन पे या ऐप पे या किसी चीज़ पे, सिस्टम पे वर्क करने वाले हैं जो कि वर्किंग है, जो रन कर रहा है, जिसका एक यूआई हो सकता है, इंटरफेस हो सकता है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम कोई सॉलिड पहले प्रोजेक्ट बिल्ड करें, हम सारे एप्लीकेशन सीखें। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिंपल प्रोजेक्ट, टू डू लिस्ट और इस तरीके के जो कैलकुलेटर, ये हमें नहीं काम करने वाले। हमें कुछ सॉलिड बनाना होगा, भले एक दो बनाओ लेकिन सॉलिड बनाओ। ओके, सो बिल्ड द प्रोजेक्ट, देन लर्न वर्जन कंट्रोल। एक बार आपने प्रोजेक्ट बना लिया अपने, देन लर्न वर्जन कंट्रोल। अभी वर्जन कंट्रोल क्या होता है, क्यों यूज होता है? सो वर्जन कंट्रोल इज बेसिक अबाउट द गिट एंड गिटहब। गिट एंड गिटहब पे आप कैसे अपने प्रोजेक्ट को अपलोड करते हो, कैसे उसको मेंटेन करते हो, कैसे उसके अलग अलग वर्जन्स निकालते हो, कैसे कमिट, पुल, पुश रिक्वेस्ट, पीआर रिक्वेस्ट कैसे आप करते हो, ये सब ये इंपॉर्टेंट है। गिटहब की बात करें, वर्जन कंट्रोल की बात करें तो थोड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू अपलोड द रिपोजिटरी, क्रिएट द रिपोजिटरी, क्रिएट द अकाउंट, देन कमिंग टू द PR request, the pull request, then merge request, then maintaining the versions itself. These are the things that we have to learn about the version control. And if you want to learn about these things, then I already made a specific tutorial upon it, learn version control, all about Git and GitHub. मैंने 15 मिनट में सब कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक सिखाए कि कैसे आप कैसे कर सकते हो। इसमें हैंड्स ऑन एग्जांपल के साथ पूरा करके दिखाया, सो यू कैन एक्सेस दिस डायरेक्टली फ्रॉम द एम्बेडेड लिंक इन दिस पीपीटी। आपको पीपीटी में एम्बेडेड लिंक में जाएगा, क्लिक करोगे आपको वीडियो डायरेक्ट ओपन हो जाएगी, या फिर लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अगर आपको पीपीटी ओपन नहीं कर पा रहे। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज गोइंग टू बी अबाउट ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। जब आपका प्रोजेक्ट बनाना का हो गया, आपने प्रोजेक्ट बनाना सीख लिया, यू आर डन विद द मेकिंग प्रोजेक्ट, यू आर डन विद द वर्जन कंट्रोल, आपको वर्जन कंट्रोल भी आ गया, आपको लोकल सिस्टम से क्लाउड सिस्टम पे अपना प्रोजेक्ट हैंडल करना आ गया, देन यू कैन स्टार्ट विद ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, बिकॉज द होल GSOC इज सेंट्रिक अबाउट द ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कि आप कैसे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन इज वेरी क्लोज रिलेटेड टू द वर्जन कंट्रोल, और आपको गिट और गिटहब वाली वीडियो में समझ में आ जाएगा। सो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन बेसिकली बता देता हूँ क्या क्या करना होता है। आपको कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पिक करनी है, आई विल हेल्प यू, आई विल शो यू हाउ यू कैन पिक अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो फॉर दैट यू हैव टू पिक द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। सो कैसे करना है? सो सिंपली कम बैक टू द GSOC ऑफिशियल पेज, to this website. I will provide the link in the description box. These are the past program. I will select the 2024 program. आप पहले के प्रोग्राम चेक कर सकते हैं। I will select the 2024 program and you will get the list of whole organization. जितनी भी पिछले ऑर्गेनाइजेशन आई थी वो सबके आपको जो है यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी, उनके सारे GitHub के अकाउंट मिल जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा पैटर्न भी समझना है, आपको प्रीवियस प्रोग्राम देखने की कौन सी कंपनी रिपीट हो रही है, किसमें ज़्यादा डिमांड है, किसमें ज़्यादा जो है आपका कॉम्पिटिशन है। क्योंकि ऑफकोर्स
काफ़ी लोग अर्ली स्टार्ट कर देंगे, काफ़ी लोग यहाँ पर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन भी स्टार्ट कर चुके होंगे, क्योंकि यस जीसॉक एक पुराना प्रोग्राम है और सबको इसकी काफ़ी रोड मैप की क्लैरिटी है, और दीज आर द इंपॉर्टेंट एंड बेसिक स्टेप्स दैट आई एम शेयर्ड विद यू, आई एम शेयरिंग विद यू। सो यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा है, तो आपको अपना पूरा पैटर्न समझना है, अपनी इंटरेस्ट समझना है, देखना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पहले आई थी, और आपको प्रिडिक्ट करना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आगे आने वाली है। वो क्यों प्रिडिक्ट करना है वो मैं अभी 1 मिनट में बताऊंगा आपको, बट देख लेते हैं पहले कि कैसे आपको एक प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के कोर्स देखने हैं। सो लेट मी ओपन दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट विल रिडायरेक्ट यू टू देयर पेज, Google Summer of Code, North Spatial, and we can go to their website as well as we can access their GitHub. They've given here. Let's see. Yes, view project details. We can click on this, and if we click on the view code, I guess we will be redirected to the GitHub file or GitHub page. No. Okay. ओके, सो दे आर गिविंग देयर ऑल डिटेल्स अबाउट द प्रोजेक्ट इन दिस पेज। आपको इस तरीके के सारे इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, क्या क्या प्रोजेक्ट गोल्स हैं सब कुछ मिल जाएगा, क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके से उनका टेक स्टैक वर्क कर रहा है, कोड बेस वर्क कर रहा है, वो सब आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप गिटहब पे जाके भी सिंपली उस कंपनी के बारे में सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। एंड लेट मी शो यू, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने कौन सी कंपनी के बारे में बात करी, उन्हीं का टेक स्टैक या गिटहब पे देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एनवायरो का चेक कर लेते हैं कि क्या वो गिटहब पे प्रेजेंट है या नहीं। ओके, सो लेट्स टाइप सिंपली गिटहब एंड पेस्ट द नेम and you will get the project regarding the Enviro car। आपको जो ऑफिशियल प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर मिल जाएगा, and you will be able to see a whole program and the whole project here, and आप कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर सकते हैं, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन आप कैसे स्टार्ट करना है, एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट अर्ली टू डू द ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, बट कैसे करना है, सो यू हैव टू गो टू द रिपोजिटरी and select the particular project that is going to be Enviro car, whatever। Okay, yes, and you have to click on the issues। यहाँ से आपको issues टैब में जाना है, and you will be able to see all the issues open right now for this project। इसी को हम open source contribution कहते हैं। क्या करते हैं कि हम इनके issues check करते हैं, what are the actual issues, we will work upon those issues, we will ask the maintainers or the contributors there, can we work upon this issue and can we fix this issue। once we fix this issue, we would be known as the open source contributor। अगर हमने कोई उनका particular issue solve कर दिया, then we would be known as the open source contributor। but अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है, सिर्फ एक कंट्रीब्यूशन करने से काम नहीं होता है, वी हैव टू कंटिन्यू दिस टिल द एंड ऑफ द प्रपोजल। जब तक अपना प्रपोजल सबमिशन का टाइम नहीं जाता तब तक हमें कंटिन्यूसली कंट्रीब्यूट करना है। अपनी 3-4 कंपनी सेलेक्ट कर लेने की, यस आई एम इंटरेस्टेड इन दीज, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड देयर कोड बेस, आई एम एबल टू कंट्रीब्यूट इन देम। तो आपको ऐसी 3-4 कंपनी सेलेक्ट कर लेनी है, प्रिडिक्ट करना है कि आगे आने वाले टाइम में कौन सी कंपनी फिर से रिटर्न कर सकती है जीसॉक में। अभी तक आपको सारा उनका पैटर्न चेक करना है प्रीवियस प्रोग्राम का, फिर देखना है कि यस ये कंपनी मेरे हिसाब से ठीक लग रही है, एंड देयर आर चांसेस दैट दे विल अगेन रिटर्न इन द नेक्स्ट 2024-5 जीसॉक। एंड अगर आपका सही रहा प्रेडिक्शन, देन यू वुड गेट अ बेटर एज। आप ऑलरेडी, क्योंकि आप उनकी लिस्ट होने से पहले ही आप उनकी रिपोजिटरी पे काम करना स्टार्ट कर चुके हैं, इश्यूज पे काम करना स्टार्ट कर चुके हैं, ऑलरेडी कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर चुके हैं, सो दे आर फैमिलियर विद योर नेम, दे आर फैमिलियर विद योर वर्क, दे नो दैट यू अंडरस्टैंड अबाउट देयर कोड बेस, यू आर ट्रस्टवर्दी एंड यू ऑलरेडी फिक्स सम इश्यूज प्रीवियसली, सो यस दे आर डेफिनेटली गोइंग टू सिलेक्ट यू। दैट्स व्हाई स्टार्ट प्रिपेयर अर्ली। आपको अपना ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करना है जल्दी से जल्दी, फरवरी से काफी पहले, क्योंकि आप जितने ज्यादा ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन पहले कर चुके होंगे उतने ज्यादा आपके चांस हो जाएंगे सिलेक्ट होने के। ये नहीं है कि फरवरी में स्टार्ट होगा प्रोग्राम तब जाके हम कुछ करेंगे, नहीं, आपको पहले ही करना है। ओके, तो आप कैसे, एक बार फिर से बताता हूँ कैसे कंट्रीब्यूट करना है। आपको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सर्च करना है गिटहब पे, उनके इश्यूज टैब में आना है, देन यू कैन आल्सो सिलेक्ट बाय द लेबल्स। आपको लेबल्स मिलेंगे एंड लेबल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। ओके, सो एंड फॉर द बिगनर्स देयर आर सम low code, high code priority, or there in some filters or the label or in the some repository there are good first issue और beginner friendly issue labels। किसी प्रोजेक्ट में आपको इस तरह के लेबल्स मिल जाते हैं, गुड फर्स्ट इशू, बिगनर फ्रेंडली इश्यूज, आपको इस तरीके का लेबल मिल जाएगा आपको। सो अगर वो लेबल प्रेजेंट है देन प्लीज सिलेक्ट दैट लेबल और सिलेक्ट दोज इश्यूज एंड स्टार्ट वर्किंग अपॉन देम इन द बिगनिंग। तो वो बिगनर्स के लिए बहुत अच्छे इश्यूज होते हैं, आप आराम से उसको ग्रेस्प कर पाएंगे क्या प्रॉब्लम है, वो समझ पाएंगे, एंड यू विल बी एबल टू मेक द फर्स्ट कंट्रीब्यूशन। अगेन कंट्रीब्यूशन कैसे करना है, वर्जन कंट्रोल कैसे करना है, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के बारे में नहीं समझ में आ रहा है, सिंपली जो मैंने आपको वीडियो दी है आपको इस फाइल में, देन यू कैन सिंपली चेक दैट वीडियो। आपको वीडियो देखनी है और आपको चीजें समझ में आएंगी। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट, पिक एन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बता दिया पिकिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, अगेन फिर से बता देते हैं, आपको पूरा उनका पैटर्न समझना है, जिसके भी साथ आपका अलाइनमेंट ठीक बैठ रहा है, जिस भी इंडस्ट्री के साथ, जिस भी टेक स्टैक के साथ आपका अलाइनमेंट बैठ रहा है, जिस भी कंपनी के साथ अलाइनमेंट बैठ रहा है, आपको उन्हें सिलेक्ट कर लेना है, उन पर कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करना शुरू कर देना है, और फरवरी तक कंटिन्यूसली आपको उनके मेंटर के साथ कनेक्शन में रहने की कोशिश करनी है, कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश करनी है, एंड यू वुड बी एलिजिबल और रेडी और प्रिपेयर्ड टू पार्टिसिपेट फ्रॉम द फरवरी इटसेल्फ। देन कमिंग टू द more important point, that is impactful contribution, effective communication and submitting the proposal। impactful contribution से मतलब क्या है, आपको छोटे मोटे contribution नहीं करते रहने हैं कि बस हम good first issue पे स्टिक हैं, हम readme फाइल में थोड़े से चेंजेस करके क्वेश्चन है, नहीं, you have to make a impactful contribution that are actually fixing some bugs, making some changes, making some enhancement in the code, not the simple documentation reading readme file changes, इस तरह के changes नहीं, आपको कुछ impactful change करना है, then only it would be worthy or the impactful, okay, or counted as the contribution। then effective communication, though it's important to communicate with the mentor or the maintainer of that particular repository। maintainer क्या होता है repository का, जो कि पूरे ओवरव्यू कर रहा है कि repository में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या पुल रिक्वेस्ट आ रही हैं, पुल रिक्वेस्ट आई होप आप समझ लोगे पुल रिक्वेस्ट क्या है, तो वो होता है मेंटेनर।
मेंटोर आपको प्रोग्राम में प्रोवाइड किया जाएगा जब प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, दोनों के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन बिल्ड करना है। ओनली उन्हें तभी पिंग करना जब इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन हो आपके पास, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछना, बट वही जो टॉपिक्स रिलेटेड है, बिना बात के भी पिंग नहीं करना है, उनके साथ रिलेशन मेंटेन करने हैं, बट बिना बात के भी नहीं। उन्हें ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं जो आपको आगे बढ़ने में, ग्रोथ करने में हेल्प करें, साथ ही साथ उन्हें भी लगे कि यस ही इज इंटरेस्टेड इन कंट्रीब्यूटिंग इन आवर प्रोजेक्ट। सो मेक श्योर यू मेक अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद योर मेंटर और द मेंटेनर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिपोजिटरी। जो भी आप पुश करें या कोई भी आप चेंजेस करें ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में, देन मेक श्योर आप उसमें कमेंट भी प्रोवाइड करें, और कमेंट ऐसा हो कि आपके जो चेंजेस आपने किए हैं वो समझ में आ रहे हो कि हाँ ये चेंजेस हैं और ये इफेक्ट इसके पड़ने वाले हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आपने ये सब पार्ट कर लिया है ठीक से, देन जब तक सबमिशन प्रपोजल का टाइम आएगा तब तक बिलीव मी सबमिशन उतना ज़्यादा वेटेज नहीं रखा हुआ। यू सिंपली नीड टू गिव अ प्रॉपर सबमिशन एंड आपके नाम से आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ये पहले ही डिसाइड हो चुका होता है कि यस ये नाम आएंगे, इनको सिलेक्ट करा जाएगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही इतने सारे कंट्रीब्यूशन उनके प्रोजेक्ट में करके रखे हैं और वो पहले से ही प्रिपेयर है उनकी कोड बेस को समझने के लिए। दैट्स व्हाई कंपनी ऑलरेडी सिर्फ नाम देख रही होती है, यस ये आ चुका है, इसने हमारे कोड बेस से पहले काम किया है, हमारे प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट किया है, तो इन्हें ही पिक करना है। दैट्स व्हाई अगर आपने अभी तक जितना मैंने बताया वो ठीक से फॉलो किया फरवरी तक और अप्रैल तक, देन यू वुड बी गेट सिलेक्टेड डेफिनेटली। ओके, देन सबमिटिंग प्रपोजल की मैंने अगेन जो है मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए दिए हैं। 3 प्रपोजल आपको मिलेंगे, उसमें आपको फॉर्मेट समझ में आ जाएगा और वो सिलेक्टेड है, पिछली बार जो सिलेक्ट हुए उस वो हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे एक इफेक्टिव प्रपोजल बनाया जाता है। प्रपोजल मस्ट बी क्रिस्प, अट्रैक्टिव, इफेक्टिव। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रपोजल का कोई वेटेज नहीं है, बिल्कुल है। अगर आप उसको ध्यान नहीं दोगे तो डेफिनेटली आप रिजेक्ट भी हो सकते हो, बट अगर आपने प्रीवियस स्टेप ठीक से नहीं किए हैं तो आपका प्रपोजल सबमिट नहीं होगा, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होगा। दैट्स व्हाई जो प्रीवियस स्टेप बताया वो करने हैं। देन आफ्टर प्रपोजल ऑल्सो डोंट स्टॉप कंट्रीब्यूटिंग। आपने प्रपोजल बना दिया, सबमिट कर दिया, उसके बाद भी जो आपको 1 मंथ का गैप मिल रहा है रिजल्ट तक का, तब भी आपको उस टाइम पीरियड में कंटिन्यूस कंट्रीब्यूशन करने हैं। कंट्रीब्यूशन इज द की टू गेट सिलेक्टेड इन द जीसॉक इटसेल्फ एंड दैट्स ऑल्सो इंपैक्टफुल कंट्रीब्यूशन। जितने आप इंपैक्टफुल कंट्रीब्यूशन करेंगे वो मैटर करेंगे। ओके, सो प्लीज डोंट स्टॉप इवन आफ्टर दिस प्रपोजल। आपने जो 1 महीने का टाइम गैप मिलेगा उसमें प्रपोजल में आपको सब कंट्रीब्यूशन करना है और आपको मेंटर से कनेक्ट करने की कोशिश करनी है, उसे समझना है, पूछना है कि मैं क्या कर सकता हूँ ताकि मैं आपकी कोड स्पेस को और अच्छे से समझ सकूँ, अच्छे से कंट्रीब्यूशन कर सकूँ, और कंट्रीब्यूशन करना है उस मंथ में भी। ओके, उसके बाद जब आपका रिजल्ट आएगा होपफुली यू विल बी गेटिंग सिलेक्टेड। ओके, इसके अलावा भी मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे काफी सारे मटेरियल शेयर करने वाला हूँ, कुछ कंपनीज के लिए शेयर करने वाला हूँ जो ईजी टू टारगेट हैं, और ऑफ कोर्स ईजी टू टारगेट है तो उसमें कंपटीशन भी रहने वाला है, बट यहाँ पर थोड़ा लक भी चलता है। सो प्लीज, मैंने आपको काफी सारी इसमें चीजें समझाई हैं, आपको प्रिडिक्ट करना समझाया कि प्रिडिक्ट भी करना है कि कौन सी कंपनियां वापस आ सकती हैं, आपको बताया कि कैसे अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्या क्या आपको गोल सेट करने हैं। इसके बाद भी हम सेशंस रखेंगे अपने, मैंने अभी जी मीट पे एक सेशन रखा था अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ, तो आप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करें। मैं ऑफिशियल लाइव सेशंस रखता हूँ जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। ओके, तो ऐसे सेशंस होते रहेंगे तो आपके मैं सारे डाउट क्लियर करता रहूँगा। प्लीज इसके बाद भी कोई क्वेरी है तो मेक श्योर यू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स और ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, एंड इफ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन। इफ यू हैव एनी क्वेरी you can ask me in the comment box or on the WhatsApp group. Thank you very much being notified, taking its leave. Thank you very much. Goodbye.